Okay, equation of a line. So if you remember in class 9th, you have studied this chapter, equation of a line, under the name of coordinate geometry. So there were last 3 chapters in mathematics. They were all part of coordinate geometry. इसमें solutions of equations था. You become very thin. Just can you 1 second. 1 second. Yes, so we have studied this equation of a line in class 9th. This was chapter number 27 or something like that. So if I tell you exactly from class 9th, you might remember those chapters from the end. One was solutions of simultaneous linear equation, जिसमें 2 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को ग्राफ पे प्लॉट करके वो जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं उसका पॉइंट ढूंढना होता है. दैट इज सोल्यूशन. And then there was this chapter, equation of a line, under the name of coordinate geometry, where slope and y-intercept and yeah, those all things were there. So ये उसका continuation है उस chapter का. And then there was one more chapter, distance formula, जिसका continuation already हमने complete कर दिया है by the name of section formula. Right, so that distance and section formula is together, 9th and 10th, and that equation of a line is this chapter. So it will be very easy for you to get it once we start. Okay, so shall we begin? You can see the board, right? Can you read it clearly? Okay, great. So I recommend that you note down all the problems which I solve, the method with which I solve, okay? First question is, check whether the point 4, minus 2 lies on the line represented by the equation or not. तो हमें ये चेक करना है कि ये वाला जो पॉइंट है 4, 2 ये इस लाइन पे लाई करता है या नहीं करता है. ठीक है, कैसे करेंगे? कैन यू टेल मी हाउ विल चेक? हम लोग ये जो पॉइंट है ना, दिस पॉइंट इज नथिंग बट द एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट. मतलब एक्स की वैल्यू क्या है 4 और वाई की वैल्यू क्या है. ये एक्स और वाई की वैल्यू इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे LHS में, और LHS और RHS अगर इक्वल आता है तो दैट मीन्स दिस पॉइंट satisfies this equation and it lies on this line. ठीक है, so LHS is equal to 3x plus 5y is equal to 2. LHS is equal to 3x, okay, is equal to 2 नहीं लिखना है, सिर्फ 3x plus 5y लिखना है. 3 bracket 4 plus 5 bracket minus 2 लिखना है, that is 12 minus 10, that is 2. Therefore LHS is equal to RHS, and therefore you can say that 4 minus 2 lies on 3x plus 5y is equal to 2. ठीक है, ये पॉइंट उस लाइन पे लाई करता है. राइट, सो दिस इज हाउ यू सॉल्व इट. डिड यू नोट इट डाउन? प्लीज नोट इट डाउन. आई एम ऑल्सो रिकॉर्डिंग, सो अगर तुम्हारा रह जाता है यू कैन वॉच द वीडियो, नोट इट डाउन लेटर, नो प्रॉब्लम. ठीक है, next question, second question. The straight line represented by the equation x minus 3y plus 8 is equal to 0 passes through 2, 4. Is this true? ये तुम्हें करना है. Is this true? तो कैसे करेंगे? ये x और y की वैल्यू सब्सटीट्यूट करके LHS RHS चेक करेंगे, जैसे हमने इसमें किया. प्लीज डू इट.
You get only 2 minutes, okay? So be quick. Does it lie? Can you tell me what is LHS? Minus 10, right? If it is minus 10, which is not equal to 0, that means 2 comma 4 does not lie on the given line, right? Okay, great. Easy, simple था ये. चलो next. Initial जो first part है, that's very very simple. The second question. The line represented by the equation 3x minus 8y is equal to 2 passes through the point k minus 2. Find the value of k. तो इसमें हम क्या करेंगे, x की जगह k और y की जगह 2 डालेंगे, and then we'll check whether LHS is equal to RHS. So wait, you don't have to write LHS and RHS. K comma 2 lies on 3x minus 8y is equal to 2. So 3 bracket k minus 8 bracket 2 is equal to 2. So 3k minus 16 is equal to 2. So 3k is equal to 2 plus 16. So 3k is equal to 18. So k is equal to 18 by 3. So k is equal to 6. Simple. पहले से इक्वल दिखाना है. क्यों? क्योंकि ये पॉइंट उस लाइन पे लाई करता है. दैट मीन्स इट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन. दैट मीन्स x और y की जगह k और 2 डाल के सॉल्व कर लेना है, एंड वी गेट द वैल्यू ऑफ k. Done? Let's go to the next. Does the line 3x is equal to y plus 1 bisect the line segment joining A and B? That means there is a line segment AB जिसमें A है -2,3 एंड B है 4,1. ठीक है, इसका मिड पॉइंट यहां पे है, सपोज C. वी डोंट नो द मिड पॉइंट. ठीक है, लेट द मिड पॉइंट बी x कॉमा y. डज द लाइन 3x is equal to y plus 1 bisect the line segment joining A and B? That means ये जो लाइन है 3x is equal to y plus 1, does it pass through C or not? We have to find that out. But for that we need to find C. हमें C ढूंढना पड़ेगा. And how do we find C? C is the midpoint of AB. How do we find C? We find C using midpoint formula. Midpoint formula we have learnt in section and midpoint formula वाला chapter. ठीक है, so midpoint formula, if you remember, x is x1 plus x2 by 2. ठीक है, and y is y1 plus y2 by 2. But let's first find x. So what is x1? x1 is -2 plus what is x2? x2 is 4 by 2. That is 4 minus 2, 2 by 2, which is 1. So x कितना हो गया? 1. Similarly, y is y1 plus y2 by 2. y1 is 3 and y2 is 1 by 2, which is 4 by 2, which is 2. Therefore, the coordinates of point C, coordinates मेरे साथ साथ ही लिखो, coordinates of C are 1, 2. ठीक है, अब अगर ये लाइन 3x is equal to y plus 1 बाइसेक्ट करेगी AB को, तो मतलब वो C में से पास होगी. मतलब C के कोऑर्डिनेट्स उस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे. सो लेट अस फाइंड इट. पहले तो LHS लिख देंगे. LHS इज इक्वल टू 3x विच इज 3 ब्रैकेट 1. ये जो x की वैल्यू है 1 यहाँ पे मैंने डाल दी. सो LHS मुझे मिला 3. देन विल पुट RHS. RHS क्या है? y plus 1.
y की वैल्यू मुझे मिली है 2 ऑलरेडी, 2 + 1, ये भी 3 आया। देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। इसका मतलब क्या है, फाइनल आंसर लिखना पड़ेगा तुम्हें, 3x इज इक्वल टू y + 1 बाइसेक्ट्स AB। 3x is equal to y + 1 bisects AB. This is how you show it. So there is also use of midpoint formula here, which we have studied in the previous chapter. So this is, as a whole, this is known as, the unit is known as coordinate geometry. इसमें कहीं कहीं डिस्टेंस फॉर्मूला का भी यूज आ जाएगा, इंक्लिनेशन, स्लोप, ये भी हम धीरे धीरे सब कुछ यूज करने वाले हैं। ठीक है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। There are 22 question, we'll try to do as many as we can. ठीक है, एटलीस्ट तुम्हें एक मेजर आइडिया तो आ ही जाएगा इस चैप्टर में है क्या। ओके, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट हुज इंक्लिनेशन इज गिवन। नाउ डस एनीवन रिमेंबर के ये जो इंक्लिनेशन है उसका सिंबल क्या होता है? इंक्लिनेशन, सपोज एक कार्टेशियन प्लेन में ड्रॉ करता हूं यहां पे, और ये कार्टेशियन प्लेन पे एक लाइन ड्रॉ करता हूं ऐसे, ये लाइन इंक्लाइंड लाइन है। इंक्लाइंड मतलब इट इज एट एन एंगल। तो इस लाइन का इंक्लिनेशन क्या होगा और वो कहां से कहां मेजर होता है? दिस इज टॉट टू यू इन 9th क्लास एंड ऑल्सो इन 10th, ऑफ कोर्स। स्कूल में तो हो ही गया ये सब, नो प्रॉब्लम। इफ यू डोंट रिमेंबर, आई टेल यू, दिस इज द इंक्लिनेशन, दिस एंगल डू यू सी, इसको बोलते हैं थीटा। क्या बोलते हैं? थीटा इज द इंक्लिनेशन। Inclination of any line is the angle made by that line with the positive direction of x axis. ये positive direction है x axis, उसके साथ जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल मेजर होता है, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज भी हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, उसको हम लोग बोल सकते हैं इंक्लिनेशन, थीटा। उसका सिंबल क्या है? थीटा। और हमें क्या ढूंढना है? फाइंड द स्लोप। तो स्लोप का एक फॉर्मूला है, भूलना मत इसको, tan थीटा, tan ऑफ थीटा। tan तो सबको पता है क्या होता है। अच्छा, स्लोप का सिंबल क्या है, किसी को याद है? स्लोप का सिंबल है m। स्लोप का सिंबल क्या है? m। m इज इक्वल टू tan थीटा। रिमेंबर, जब भी अच्छा, स्लोप के और भी फॉर्मूला है, जैसे स्लोप का एक फॉर्मूला जो बच्चे मेरे साथ 9th में पढ़े उनको पता होगा, m इज इक्वल टू राइज अपॉन रन। मैंने बताया था ये 9th में, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ये और एक फॉर्मूला है स्लोप का, लेकिन हम ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं जब इंक्लिनेशन दिया है हमें। सो स्लोप इज tan थीटा। सो इन द फर्स्ट केस व्हाट इज द स्लोप? स्लोप इज tan ऑफ 60 डिग्री। tan 60 इज √3। ठीक है, इन द सेकेंड केस स्लोप इज tan ऑफ 52 डिग्रीज। ठीक है, अब तुम सबकी बुक में, मतलब टेक्स्ट बुक में, पीछे एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है, देखो। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में एक नेचुरल टेंजेंट्स लिखा हुआ है, लिखा है उधर ही होगा, नेचुरल टेंजेंट्स। मिला नेचुरल टेंजेंट्स? नेचुरल टेंजेंट्स में जो फर्स्ट कॉलम है वो है एंगल्स का फर्स्ट कॉलम, उसमें 52 डिग्री वाला रो ढूंढो। मिला 52 डिग्री? उसमें जो फर्स्ट है, फर्स्ट वैल्यू उसके 52 के बाद जो लिखी है वो बता दो मुझे। 1.2799, करेक्ट। 1. वैसा लिखा है तेरे में या तू राउंड ऑफ करके बोल रहा है? 1.280 तेरी बुक, और तेरी बुक कौन सी है? अच्छा, वेरी गुड। तूने मतलब तू कंसाइज फॉलो कर रहा है, कंसाइज। और तुम्हारा स्कूल के बुक में 1.280 है, कोई बात नहीं, दोनों को राउंड ऑफ करके एक ही वैल्यू है, मतलब कोई बड़ी बात नहीं है। तो जो भी तुम्हारे बुक, तुम्हारे स्कूल में जब तुम एग्जाम लिखोगे तो तुम्हें ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देंगे वो लोग। ठीक है, सो यू शुड बी एबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एनी एंगल यूजिंग दोज ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स। ठीक है, तो तुम अपने टेबल में जो वैल्यू है वो ले सकते हो। नाउ समझ में आया स्लोप कैसे ढूंढते हैं? tan थीटा, tan ऑफ द एंगल। चलो, अब बोला है फाइंड द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन हुज स्लोप इज 1। मतलब थीटा ढूंढना है, स्लोप दिया है, तो मतलब m इज इक्वल टू 1 दिया है हमको। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि tan थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो tan ऑफ विच एंगल इज 1?
45 डिग्री, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। ये फर्स्ट का आंसर है। फिर m इज इक्वल टू 2.9042, तो वही तुम्हारा जो टेबल है उसको यूज करो और देखो 45 से बड़ा ही होगा एंगल, जिसकी वैल्यू 2. tan ऑफ दैट एंगल शुड बी 2.9042। यहाँ पे भी आंसर लिखा है तो यू कैन मैच इट, 71 डिग्रीज आना चाहिए एज पर योर टेबल्स। ठीक है, ये भी हो गया। नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन। हाँ, अभी क्या बोला है सिक्स क्वेश्चन में? फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स दिस एंड दिस। स्लोप ढूंढना है और 2 पॉइंट्स दिए हैं। तो मैंने अभी एक फॉर्मूला बताया था, हाँ, तो मैं तुम्हें उसका एग्जैक्ट नाम दे देता हूं। द फॉर्मूला इज कॉल्ड 2 points form of slope। 2 points form, 2 points form क्या है स्लोप का? m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, तो इसमें मुझे बताओ प्रतीक y2 क्या है? वेरी गुड। नीत बताओ y1 क्या है? एंजेलिना कैन यू टेल मी व्हाट इज x2 एंड व्हाट इज x1? तो 7 माइनस 3 अपॉन 2 माइनस माइनस 2। डोंट गेट कंफ्यूज्ड हियर, 7 माइनस 3 इज 4 एंड 2 माइनस माइनस 2 इज ऑल्सो 4। सो स्लोप कितना हो जाएगा? 1। योर आंसर इज करेक्ट। ठीक है, नाउ ऑल्सो फाइंड द इंक्लिनेशन ऑफ लाइन ए बी। अगर स्लोप 1 है तो इंक्लिनेशन कितना होगा? थीटा कितना होगा? 45 डिग्री, क्योंकि m 1 है, tan थीटा 1 है, तो थीटा हैज टू बी 45 डिग्री। अच्छा, नाउ दीज टू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बिकॉज यहां पे तुम्हें एक नई चीज बताने वाला हूं मैं। इफ टू लाइन्स आर पैरेलल, इसको लिख लेना, इफ टू लाइन्स आर पैरेलल the product of their slopes is 1। if two lines are parallel the product of their slopes is 1, मतलब m1 into m2 कितना हो जाएगा? 1। अगर दो लाइन पैरेलल है तो उनका स्लोप सेम होगा, नहीं, product of their slope is 1, is it correct? No, not product, they are reciprocal of each other. No, not the reciprocal, their slopes are same. The quotient of their slopes is 1, not the product. Just check in your book. नहीं, दूसरा वाला पैरेलल वाला। हाँ, द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप इज 1 नहीं है इसमें। इफ टू लाइन्स आर पैरेलल देयर स्लोप्स आर इक्वल। their slopes are equal, that is m1 is equal to m2। तो यहां पे क्या बोला है? द स्लोप ऑफ द लाइन पैरेलल टू ए बी। ए बी का स्लोप कितना है? ए बी का स्लोप 1 है, तो कोई भी लाइन जब ए बी से पैरेलल होगी उसका स्लोप कितना होगा? 1 ही होगा। एंड दे हैव आस्क्ड टू फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी। अच्छा, इसमें ये पॉइंट लिखना है तुम्हें। इफ टू लाइन्स are perpendicular then m1 is equal to negative reciprocal of m2। मतलब एक का स्लोप दूसरे का नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा। ठीक है, सो बताओ कि कोई भी लाइन अगर परपेंडिकुलर है ए बी से तो उसका स्लोप कितना होगा? ऑफ स्लोप ऑफ ए बी। ए बी का स्लोप कितना है? 1। ए बी का स्लोप 1 ढूंढा ना हमने, तो इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल कितना होगा?
-1/1। 1 क्या है? ए बी का स्लोप। नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ 1 कितना होता है? मतलब अगर कोई लाइन परपेंडिकुलर है किसी दूसरी लाइन से तो उन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा, या पहली लाइन का स्लोप दूसरी लाइन के स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा। तो ठीक है, इसी लाइन पे मैं थोड़ा आगे बात करूंगा। एक लाइन है जिसका स्लोप है 3। एंजेलिना, can you tell me the slope of another line M2 which is parallel to this line? Very good. Neet, can you tell me slope of another line which is perpendicular to this line? मैंने अभी क्या बोला? परपेंडिकुलर लाइंस के स्लोप का क्या रिलेशन होता है? नेगेटिव रेसिप्रोकल। नेगेटिव 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 रेसिप्रोकल। तो 3 का नेगेटिव रेसिप्रोकल क्या होगा? पहले 3 को रेसिप्रोकल करो, उसको नेगेटिव बना दो। 3 का रेसिप्रोकल क्या होता है? उसका नेगेटिव क्या होता है? बस। और एक ये मत लिख, नहीं समझेगा। अभी जो कन्वर्सेशन है ना वो समझेगा। ठीक है, और एक एग्जांपल पूछ रहा हूं तेरे को। अगर एक लाइन है जिसका स्लोप है -4/5, ठीक है, तो एक दूसरी लाइन है वो उससे पैरेलल है, उसका स्लोप कितना होगा? वेरी गुड। ठीक है, और एक तीसरी लाइन है जो इससे परपेंडिकुलर है, उसका स्लोप कितना होगा? क्या किया तूने? पहले रेसिप्रोकल किया, फिर नेगेटिव कर दिया, और ऑलरेडी माइनस साइन थी तो प्लस कर दिया। वेरी गुड, अब समझ में आया? नेगेटिव रेसिप्रोकल। परपेंडिकुलर लाइंस हैव स्लोप ऑफ नेगेटिव रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर एंड पैरेलल लाइंस हैव इक्वल स्लोप्स। ठीक है, सो ये याद रखना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइन joining A and B is parallel to the line joining C and D. Find X. A और B को ज्वाइन करने वाली लाइन C और D को ज्वाइन करने वाली लाइन से पैरेलल है। मैं यहाँ पे 2 लाइन बना देता हूँ तो तुम्हें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ऐसा कुछ ड्रॉ करना जरूरी नहीं है, बट फिर भी फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। -3,4 और B है 2, -1। C है 1, -2 एंड D है 0, x। ठीक है, तो हमें क्या ढूंढना है? x ढूंढना है। प्रतीक, कैसे करेंगे इसको? ये दोनों पैरेलल है ना एक दूसरे से। हाँ, किसका स्लोप निकालेंगे? अच्छा, तो स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू, बता क्या है? बेटा इसमें हमने स्लोप का tan थीटा फॉर्मूला क्यों नहीं यूज किया नीत? 2 पॉइंट दिए तो हमें पॉइंट फॉर्म यूज करना है स्लोप का, एंगल फॉर्म नहीं। एंगल फॉर्म तभी यूज करना है जब एंगल दिया है। ठीक है, y2 - y1, बताओ वैल्यूज प्रतीक। -1 -4 अपॉन 2 -3, राइट? सो -5 अपॉन 5 विच इज -1। अच्छा, नेक्स्ट स्लोप ऑफ CD. Angelina, can you tell me? Slope of CD? Yes, x -2 upon 0 -1, right? So what will it be? X plus 2 upon -1, that is minus of x plus 2. Minus of x plus 2. सही है? Now what we will do? नीत, दोनों का स्लोप तो ढूंढ लिया, अब क्या करेंगे? बोला है कि दोनों लाइन पैरेलल है,
हमें x ढूंढना है। अभी क्या करेंगे, दोनों का स्लोप इक्वल है तो इक्वेट कर देंगे। क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे, मतलब -1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ, माइनस माइनस कटेगा तो 1 इज इक्वल टू x+2 आएगा। इसका मतलब है 1 - 2 इज इक्वल टू x। इसका मतलब है x इज इक्वल टू -1। x इज इक्वल टू -1। समझ में आया? तो ये एप्लीकेशन है, ये सब फॉर्मूला वही रहेगा, अलग अलग सिचुएशन में हमें वो फॉर्मूला अप्लाई करना है। इट्स अ वेरी इजी चैप्टर, वेरी स्कोरिंग, इसलिए मैंने ये चूज किया आज करने के लिए। ठीक है, डन, मूव टू द नेक्स्ट। वी आर गोइंग गुड, हाँ, वी स्टिल हैव 1 hour, वी कैन फिनिश इट। Given the points A, B, C are collinear, find the value of A. ये जो 3 पॉइंट दिख रहे हैं ना तुम्हें, somehow my highlighter is not working well, so I'll just show you. A, B and C, they are collinear. What do you mean by collinear, Angelina? They are lying on one straight line. They are lying on one straight line. So you have to find this A, which is missing. This is missing coordinate of point C. What idea of slope will you use here, Neet? देखो मैं तुम्हें ड्रॉ करके बता दूं। ये एक लाइन है, इस पे पॉइंट A है 2,3 और यहाँ पे पॉइंट B है विच इज -5,0 एंड यहाँ पे पॉइंट C है विच इज -2,A। टेल मी, क्या आइडिया यूज करोगे स्लोप का ये A ढूंढने के लिए? तीनों पॉइंट एक ही लाइन में है। मुझे बताओ व्हाट इज AB? व्हाट इज AB? AB पॉइंट थोड़ी है, A पॉइंट है। AB क्या है? AB क्या है? एग्जैक्टली और BC क्या है? दोनों लाइन सेगमेंट है, दोनों में क्या रिलेशन है AB और BC में? AB इज नॉट इक्वल टू BC। B इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। और क्या रिलेशन, प्रतीक? और क्या रिलेशन? Sir, all lie in the same line. All are on the same line, I know, but what is the common relation between AB and BC? They both have same slope because they are on the straight line. और एक स्ट्रेट लाइन या पैरेलल लाइंस का स्लोप क्या होता है? सेम। तो हम लोग क्या लिखेंगे? स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ BC। सही है ना? स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ BC। अच्छा, AB का स्लोप क्या है? y2 - y1 अपॉन, अच्छा, सो व्हाट इज y2 - y1 इन केस ऑफ AB? हाँ, यस नीत, 0 - 3 अपॉन -5 - 2, वेरी गुड, इज इक्वल टू स्लोप ऑफ BC, एंजेलिना? A - 0 अपॉन -2 ब्रैकेट सॉरी -2 माइनस -5, -2 माइनस ब्रैकेट -5। अभी सही है ना? ओके, सो इधर न्यूमरेटर में आएगा -3, डिनोमिनेटर में आएगा -7 इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा A एंड हियर यू विल गेट 2 + 5, -2 + 5, am I right? -2 + 5. So this minus will get cut. -2 + 5 will be 3. 3 वो साइड चला जाएगा, 3 3s are 9, 9/7 बन जाएगा which is A. So A कितना हो जाएगा? 1 2/7। क्या हो जाएगा? 1 2/7। This is the coordinate of y coordinate of point C, that is A. कोलिनियर है मतलब दोनों लाइन सेगमेंट का स्लोप सेम है। ये और एक चीज तुम सीखे स्लोप के बारे में।
Okay, next. We are on the third part of the chapter. You are not realizing. Because they are small parts, very small parts. पहला तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन के ऊपर था, वो पॉइंट उस लाइन पे लाई करता है कि नहीं करता है, वेरी सिंपल. फिर स्लोप के बारे में आया, फिर उसमें भी हमने सीखा कि पैरेलल लाइंस का स्लोप सेम होता है, परपेंडिकुलर लाइन के स्लोप एक दूसरे का नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है. ठीक है, कोलिनियर पॉइंट्स है तो उसमें लाइन सेगमेंट्स का स्लोप सेम होता है, पैरेलल लाइंस का स्लोप सेम, वो सब हमने सीख लिया. Now we will talk about equation of a line in terms of slope and y-intercept. So this topic which I am going to teach you, it is known as forms of equations of a line. Forms of equation of a line. और जिसमें first form जो हम पढ़ने वाले हैं, that is slope intercept form. प्लीज नोट इट डाउन, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. अच्छा, इस स्लोप का मतलब क्या होता है? स्लोप तो वी ऑलरेडी नो, एम. और एम कैसे ढूंढना है ये कोई बड़ी बात नहीं है. या तो tan थीटा से ढूंढ लो अगर थीटा दिया, इंक्लिनेशन दिया है, या तो y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 से ढूंढ लो. ठीक है. दूसरी चीज जो मैंने तुम्हें यहां पे लिखी है, दैट इज इंटरसेप्ट. इंटरसेप्ट होता है सी, स्मॉल सी. सो इंटरसेप्ट होता क्या है एक्चुअली, मैं तुम्हें विजुअली दिखा देता हूं इंटरसेप्ट क्या होता है. सो सपोज दिस लाइन is lying on this Cartesian plane. The coordinate of the point where this line is cutting the y-axis is known as the y-intercept. ये जो intercept है ना, that is nothing but y-intercept. What is y-intercept? Coordinate of y-coordinate of point at which the line is cutting the y-axis. मतलब ये जो length है ना, ये वाली, the distance of the point at which the line cuts the y-axis from the origin, इसको हम लोग बोलते हैं c. c का मतलब y-intercept. तो ये जो दोनों चीजें हैं उसके with respect to these two things you can create an equation of a line, and that looks like, you have studied in class 9th, that looks like this: y is equal to mx plus c. y is equal to mx plus c. अगर तुम किसी भी इक्वेशन ऑफ अ लाइन को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे तो जो कोएफिशिएंट होगा x का विल बी द स्लोप, और जो कांस्टेंट टर्म होगी विल बी द y-intercept. So if you know these two things, you can create equation of a line for any line. Remember this. ये लिखा ना तुम लोगों ने इतना? अच्छा, इसके बाद सेकेंड फॉर्म दिखा रहा हूं मैं तुम्हें. What is m, what is c? और यहां पे c दिखाया, ये वाला नहीं, जरूरत नहीं है. यू शुड रिमेंबर दैट, जस्ट रिमेंबर दैट. ठीक है. सेकेंड इज स्लोप पॉइंट फॉर्म of a line, of equation of a line. Remember, we are doing forms of equation of a line. So the second form is slope point form. मतलब क्या है? Suppose there is a line which is passing through point x1 comma y1. ये है एक पॉइंट जिससे एक लाइन पास हो रही है, एंड इट हैज अ स्लोप ऑफ m. हमें क्या पता है? वो लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है और उसका स्लोप इतना है. वी कैन फॉर्म इक्वेशन ऑफ अ लाइन. हाउ डज इट लुक लाइक? इट लुक्स लाइक दिस: y minus y1 is equal to m bracket x minus x1. Can you please check it in your textbooks? स्लोप पॉइंट फॉर्म का फॉर्मूला यही है क्या? Yes, sir. वेरी गुड, थैंक यू. यहां भी कोई एक कंफर्मेशन दे दोगे तो अच्छा है. या y minus y1 is equal to m bracket x minus x1. X1. This is known as slope point form. ठीक है. और तीसरा जो फॉर्म है, इट इज वेरी सिमिलर टू स्लोप पॉइंट फॉर्म. इट इज नोन एज टू पॉइंट्स फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ लाइन. टू पॉइंट्स फॉर्म.
सपोज हमको बोला है कि एक लाइन है, वो 2 पॉइंट से पास कर रही है, या फिर उसके ऊपर 2 पॉइंट लाई कर रहे हैं। वो कौन से पॉइंट्स है? x1 y1 एंड x2 y2। ये दोनों पॉइंट उस लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, और हमें वो इक्वेशन ऑफ अ लाइन बनाने बोला है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम बना सकते हैं। सबसे पहले हम दोनों पॉइंट को लेके स्लोप निकाल लेंगे। स्लोप क्या है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और फिर हम लोग यही वाला फॉर्म यूज करेंगे। कौन सा फॉर्म? स्लोप पॉइंट फॉर्म। दैट इज y माइनस y1 इज इक्वल टू m ब्रैकेट x माइनस x1। तो हमें क्या मिलेगा? इक्वेशन ऑफ अ लाइन। सो ये तीनों फॉर्म से वी कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप पॉइंट फॉर्म और 2 पॉइंट्स फॉर्म। सो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन तुम्हें देंगे ये लोग, और तुम्हें इक्वेशन ऑफ अ लाइन क्रिएट करना है। दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ द चैप्टर। ठीक है, जैसे ही क्वेश्चंस करेंगे ये क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। शायद ये कॉन्सेप्ट समझने से अभी नहीं समझ रहा है, बट जैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, विल नो कि हाँ ये तो स्लोप दिया है और ये तुम्हारा वाई इंटरसेप्ट, तो बनाओ इक्वेशन। बहुत इजी है। शैल वी? लिख लो। ओके ग्रेट। ओके, सो यहां पे क्या बोला है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन हुज इंक्लिनेशन इज 45। नीत, इंक्लिनेशन क्या है? थीटा। इंक्लिनेशन थीटा है, डोंट फॉरगेट इट। थीटा इज 45 एंड वाई इंटरसेप्ट इज 5। प्रतीक, वाई इंटरसेप्ट क्या होता है? c, small c is 5. So Angelina, what is the first thing we are going to do? Find m. What is m? M, tan of theta, that is tan 45 degree, that is 1. ठीक है, and now we have to form the equation of a line. So which form will use? Slope intercept form, the first form. How does that look like? y is equal to mx plus c. इसमें याद रखना एक बात, y और x को नहीं छेड़ना है अपने को। y और x तो रहेगा ही इक्वेशन में, उसके बिना तो इक्वेशन बनेगा ही नहीं। हमें सिर्फ c और m की वैल्यू डालनी है। ठीक है, सो y इज इक्वल टू m की जगह आएगा 1x प्लस c की जगह 5। सो y इज इक्वल टू x प्लस 5। दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। सो सिंपल मैन, कितना इजी है। ऐसे ही है क्वेश्चन पूरे चैप्टर में। इफ यू नो दिस मच ना, यू कैन क्रैक एनी क्वेश्चन, नो प्रॉब्लम। हाँ बोलना भाई। हाँ तो फिर समझ गए। मस्त। अच्छा, सेकंड वाला, इंक्लिनेशन 60 डिग्री एंड पासिंग थ्रू -2, 5। थीटा कितना है? 60 डिग्री। सबसे पहले नीत क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? m फाइंड कर। क्या है m? √3। याद रखो एंगल्स, वैल्यूज को, tan 60 √3। ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या दिया है? इट इज पासिंग थ्रू -2, 5। So we have the slope, we have the point. Which equation? Slope point form. Slope point form का क्या, कैसे दिखता है वो? y minus y minus. Correct. So see, again I'm telling you one thing. x और y को नहीं छेड़ना इसमें। x और y को ऐसे ही रहने दो, सिर्फ वैल्यू डालो x1 y1 की और m की। ठीक है, तो क्या डालू मैं प्रतीक? y माइनस y1 की जगह पे y माइनस 5 इज इक्वल टू √3 ब्रैकेट x माइनस -2 और x प्लस 2। यू आर करेक्ट। ठीक है, सो इसको सिंप्लीफाई कर दो। y माइनस 5 इज इक्वल टू √3 टाइम्स x प्लस 2 √3। ठीक है, 5 को भी वो साइड ले लो। सो वी विल गेट y इज इक्वल टू √3x प्लस 2 √3 प्लस 5। इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो, यू कैन लीव इट लाइक दिस। सी, इधर भी ऐसे ही छोड़ दिया। इजी है या डिफिकल्ट है? अच्छा ठीक है, लास्ट वाला तुम्हें करना है। क्या करना है? हमें इक्वेशन ऑफ अ लाइन ढूंढना है विच इज पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स।
तो पहले क्या करेंगे, पहले तुम ये दोनों को यूज करके स्लोप निकाल लोगे और फिर से यही वाला स्लोप पॉइंट फॉर्म से you can form the equation. Please do it. Do it, do it, do it. You will try and get the answer. कोई भी हो सकता है, एनीथिंग, क्योंकि बोथ आर लाइंग ऑन द लाइन ना, एनी पॉइंट विल डू. x1 Sir, y1 m is can equal be to 1. -3, 1 or 1, 5. Did Sir, anyone 1. get the answer? Yes. कुछ पूछना है किसी को, प्लीज पूछो. पहले तो स्लोप बता दो कितना है. Sir, 1. 1. 1. Yes, y is equal to x plus 4 is the equation of the line. Can you tell me the slope? 1 है. Okay, good. Did you get it? Slope निकला. जल्दी जल्दी, Yes. टाइम नहीं होता अपने पास. उधर पीछे क्या देख रहा है, तेरे सामने है, इधर इतने सारे सॉल्व करके रखे हुए हैं. फॉर्मूला नहीं याद है तो चल ना, फिर जल्दी कर. इधर आंसर भी आ गया सबका. ठीक है, डन. चलो, आई एम मूविंग अहेड. ओके नीत, कोई बात नहीं, रुक जा. We are just halfway there and we don't have much time, so we have to pick up the pace now. We are less than halfway. Okay, find the equation of the line whose x-intercept is 8 and y-intercept is -12. So this is, huh? No. Yeah, but that has no use here. I will show you what do they mean. This is your Cartesian plane. ठीक है. Now when they say that x-intercept is 8, that means यहाँ पे एक point है that is 8,0. 8,0 उस पे से वो लाइन पास हो रही है, और y इंटरसेप्ट इज -12, मतलब यहाँ पे एक पॉइंट है दैट इज 0,-12, यहाँ से ये लाइन पास हो रही है. ठीक है. सो द लाइन विच वी वांट टू ड्रॉ इज समवॉट लाइक दिस. ठीक है, ऐसी है ये लाइन, ये दोनों पॉइंट से पास हो रही है. और हमें क्या ढूंढना है, इक्वेशन ऑफ दिस लाइन. वी कैन इजीली डू इट. They actually trying to misguide you by saying x-intercept and y-intercept. We can easily find the equation of line by 2 points form, because we know 2 points on the line, 8,0 and 0,-12. So first thing I'm going to do is find the slope. That is y2 minus y1 upon x2 minus x1. y2 क्या है, ये देखो, ये 0.1 है और ये 0.2 है. अब बताओ y2 क्या है. -12 माइनस y1 क्या है, x2 क्या है, x2 0 है, minus x1 8. So we will get -12 upon -8.
which is 4 3s are 4 2s are 3/2. 3/2 क्या है? तुम्हारा स्लोप आ गया. अब इक्वेशन ऑफ अ लाइन बाय विच फॉर्म? 2 points form or slope point form now. So y minus y1 is equal to m bracket x minus x1. So y minus, what is y1? 0 है ना. m 3/2 bracket x minus, what is x1? 8. ओके. तुम इसमें 0 और -12 डाल के भी चेक करो तो सेम आएगा, कोई टेंशन नहीं है. ठीक है. y इज इक्वल टू 3/2 ब्रैकेट x माइनस 8. ठीक है. 2 को वो साइड ले लो. सो 2y इज इक्वल टू 3x माइनस 24. ऐसे भी छोड़ सकते हो इसको. 2y इज इक्वल टू 3x माइनस 24. ईजी है. तो दे वर ट्राइंग टू Yes, sir. make you are right, but we don't get fooled so easily, right? We have to think कि ये इंटरसेप्ट है. ओके. तो ऐसे ड्रॉ भी कर सकते हो तुम. रफ डायग्राम तो ड्रॉ कर ही सकते हो. देखो पूरे चैप्टर में कहीं भी प्लॉटिंग का जरूरत नहीं पड़ता है. वी थिंक दैट दिस इज ग्राफ का चैप्टर है. दिस नथिंग टू डू विथ ग्राफ. दिस हैज टू डू विथ द मैथमेटिक्स ऑफ ग्राफ, which you can do without plotting. Next question, shall we? मेरे साथ साथ लिखो, नहीं तो सॉल्व्ड एग्जाम्पल नहीं लिखोगे फिर कंफ्यूजन होगा बाद में. Anyways, I'm recording so you can do it later, but do it. Yeah. Find the equation of the line whose slope is -3 and x-intercept is also -3. स्लोप -3 है और x इंटरसेप्ट -3 है, ऐसा बोला. नहीं करना पड़ेगा, बताता हूं क्यों. Since x intercept is -3, we can say that the line is passing through, अगर x इंटरसेप्ट -3 है तो ये लाइन किस पॉइंट से पास करेगी? हाँ, x एक्सिस पे किस पॉइंट से पास करेगी? (0). मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में दिखाया था, इधर x इंटरसेप्ट क्या था? 8 था. तो कौन से पॉइंट से पास कर रहा है ये लाइन? 8,0. तो अगर x इंटरसेप्ट -3 है तो कौन से पॉइंट से पास करेगा? -3,0. और स्लोप क्या है? -3. So to find the equation of a line, now we will use slope point form. Y minus y1 is equal to m bracket x minus x1. So y minus y1, what is y1? y1 is 0. What is m? -3. What is x1? -3. So y is equal to -3 bracket x plus 3. So y is equal to -3x minus 9. ठीक है. अब ये देखो y is equal to -3x minus 9 है. ये -3x 9 ये सबको वो साइड लेके जाओ. So we get 3x plus y plus 9 is equal to 0. जैसे इस फॉर्म में दिया है आंसर. तुम यहां भी छोड़ोगे तो गलत नहीं है. कोई बोलेगा मैंने यहां पे यहां तक ही किया है तो मेरा मार्क्स कटेगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं कटेगा. बट इफ यू राइट ऑल द coefficients and variables positive, it is better. So that's why if you write it this way, it is better. Samjha? Again, they were trying to little bit play with you, but this was easier question. Now we know it. Next question. Find the equation of a line which passes through 2,7 and whose y-intercept is 3. Y-intercept मतलब वो तो पता है. And passing through 2,7. देखो y-intercept 3 है, तो can I say that since the y-intercept is 3, we can say that the line is
passing through 0,3 है ना। पता चला कैसे? क्योंकि ये तुम्हारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है और y इंटरसेक्ट यहाँ पे होता है, तो ये 3 है, मतलब इसका कोऑर्डिनेट्स क्या होगा 0,3। तो लाइन इससे पास कर रही है। और क्या बोला है? इट इज पासिंग थ्रू 2,7 ऑल्सो। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट थ्रू विच इट इज पासिंग इज 2,7। तो हमारे पास 2 पॉइंट आ गए, तो हम क्या निकाल सकते हैं? स्लोप। सो स्लोप इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। देखो ये फर्स्ट पॉइंट है और ये तुम्हारा सेकेंड पॉइंट है। सो कैन यू टेल मी व्हाट इज y2 माइनस y1, x2 x2 इज 0 माइनस, 1 मिनट, 7 माइनस 3 किया ना, तो 2 माइनस 0 होगा। ये फर्स्ट पॉइंट है और ये सेकेंड पॉइंट है ना। सो x2 माइनस x1 दैट इज 2 माइनस 0, y2 minus y1, 7 minus 3 and 2 minus 0, correct? So that is 4 by 2 which is 2। क्या है ये तुम्हारा स्लोप। अब क्या करेंगे? we have to find the equation। कौन सा फॉर्म? we can use y is equal to mx plus c। क्यों? क्योंकि c तो पता है हम अपने को। देखो whose y intercept is 3, तो इजी है ना ये तो। सो y इज इक्वल टू m कितना हो जाएगा? 2x प्लस 3 हो गया, इजी। y इज इक्वल टू mx प्लस c। सेम आता, सेम आता। सो दैट्स द ब्यूटी के तुम कोई भी मेथड करो तुम्हें सेम आंसर आता है। दैट्स वाई 3 इक्वेशंस ऑफ अ लाइन। चलो नेक्स्ट क्या है देखते हैं। द इक्वेशन ऑफ अ लाइन is 3x minus 4y plus 12 is equal to 0. It meets the x-axis at point A and y-axis at point B. Oh. Find the coordinates of point A and B. मतलब बोला है कि एक, सपोज ये तुम्हारा कार्टेशियन सिस्टम है, और एक, हाँ 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 चलेगा, एक लाइन है, सपोज ऐसा लाइन है, ठीक है। सो ये जो दो पॉइंट है यहां पे वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस को मीट कर रहा है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है ना। इट मीट्स एक्स एट पॉइंट ए एंड वाई एट पॉइंट बी। और ये लाइन का इक्वेशन है 3x माइनस 4y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो ए और बी के कोऑर्डिनेट ढूंढने हैं सबसे पहले। वेरी गुड। ए के कोऑर्डिनेट हम मान सकते हैं x, 0 और बी के कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, y। तो हम लोग एक एक करके x और y की वैल्यू डाल देंगे। ओके, सो सिंस a and b, since A and B lies on our given line, therefore 3x minus 4 bracket 0 plus 12 is equal to 0। मतलब मैंने क्या किया, x को x ही रखा लेकिन y की जगह क्या डाल दिया 0, क्योंकि मैंने पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट सब्स्टिट्यूट किए। ठीक है, सो ये हो जाएगा 3x 4 इंटू 0 0 प्लस 12 उधर जाके बन जाएगा -12। सो x इज इक्वल टू -12/3। सो x इज इक्वल टू -4। x कितना आया? therefore coordinates of point A are, point A के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? (0) -4, 0। सिमिलरली कैन यू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी? कैसे करोगे?
3 इंटू 0 माइनस 4y प्लस 12 इज इक्वल टू 0 और तुम्हें मिल जाएगा y की वैल्यू। प्लीज सेम चीज लिखो, ऐसे ही स्टेटमेंट लिखो, फिर हम फाइंड कर लेते हैं। कम ऑन गाइस, यू आर डूइंग वेरी गुड, बहुत सही जा रहे हो तुम लोग, अच्छा स्पीड। कितना आया? 0,3। 3. तो मतलब सही है अपना आंसर। ए के कोऑर्डिनेट्स है -4,0 और बी के कोऑर्डिनेट्स है 0,3, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड क्वेश्चन क्या है? फाइंड द लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ए बी कट बाय द लाइन विद इन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। मतलब ए बी की लेंथ ढूंढनी है। लेंथ कैसे ढूंढते हैं? So distance formula. यस, लेंथ ढूंढते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से। सो डिस्टेंस फॉर्मूला इज अंडर रूट ऑफ x1 minus x2 the whole square plus y1 minus y2 the whole square. This was taught to you in class 9th. ठीक है, so AB is equal to under root of what is x1? Yes, -4, and what is x2? 0 the whole square plus what is y1? y1 is 0 minus 3 the whole square. So -4 का स्क्वायर 16 और -3 का स्क्वायर 16 plus 9. So AB is equal to √25, which is 5. So length of AB is 5 unit. बहुत easy. So they see how they have mixed it. Slope का भी आइडिया डाल दिया उसमें, और इक्वेशन ऑफ अ लाइन, डिस्टेंस फॉर्मूला, दे आर ऑल एक्चुअली द सेम थिंग। अलग अलग चैप्टर में हम एक ही टॉपिक पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, write down the equation of the line whose gradient is 3/2 and which passes through point P, where P divides the line segment joining A and B in the ratio 2:3. Section formula. पहले तो तुम्हें बोला है राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ अ लाइन हुज ग्रेडियंट इज 3/2। ग्रेडियंट मतलब स्लोप, रिमेंबर ग्रेडियंट मतलब स्लोप, दूसरा नाम है स्लोप का। m is 3/2 and which passes through point P, and P divides the line segment joining A and B in the ratio 2:3. So let the coordinates of point P be x comma y. Let the coordinates of point P be x comma y. Now P divides AB in the ratio, P divides AB in the ratio 2:3. P divides AB in the ratio 2:3. ठीक है, तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हम सेक्शन फॉर्मूला से ढूंढ सकते हैं। अब सेक्शन फॉर्मूला है क्या? इफ यू रिमेंबर, आई हैव टॉट यू दिस, x is equal to m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2. M1 plus M2. This is m1 and m2 is the ratio, which is 2 and 3. x1 and x2 we already have over here, are the x and y coordinates of point A and B. ठीक है, x and y both. So ये x है, which is equal to m1, which is 2 into x2. Can you tell me what is x2? 3 plus m2, which is 3 into, can you tell me what is x1? Minus 2 upon m1 plus m2, that is 2 plus 3. So 2 3s are 6 and plus 3 into minus 2 is -6 by 5, that is 0. X coordinate 0 आ गया। y क्या है? m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2. m1, what is m1?
m1 is 2 into y2 minus 4 plus m2 3 into y1 6 the whole upon 2 plus 3 which is equal to minus 8 plus 18 by 5. Minus 8 plus 18 is 10. 10 by 5 is 2, just 2. माइनस की साइन नहीं आएगी. ठीक है. सो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स मिल गए. किसके मिले? ये पॉइंट पी के. therefore पॉइंट पी इज 0,2. पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट मिल गए और स्लोप भी पता है. ठीक है. किसका? पॉइंट पी जिस लाइन पे है उस लाइन का स्लोप और पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स. तो हाउ डू वी फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन? यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म. y minus y1 is equal to m bracket x minus x1. y minus what is y1? y1 is 2. m क्या है? 3/2 और x minus x1 क्या है? yes, please solve it and देखो ये आता है कि नहीं. टू को भी मल्टीप्लाई कर देना दूसरी साइड. 3x minus 2y plus 4 is equal to 0 या 3x plus 4 is equal to 2y. ऐसे भी आ सकता है. या 2y is equal to 3x plus 4. whichever way this should be the form. ठीक है. इजी था. लेंदी था क्योंकि सेक्शन फॉर्मूला आ गया. वो हमको पता नहीं था बट जनरली स्लोप का देखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइंस. यहां पे देखो क्लियरली बोला है लाइंस. इक्वेशन ऑफ लाइंस which pass through the point -2, 3 and are equally inclined to the coordinate axis. What do you mean by equally inclined to the coordinate axis? सबसे पहले तो नीत मुझे बताओ कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होती है? कोऑर्डिनेट एक्सिस होती है एक्स एंड वाई एक्सिस. क्या होती है? एक्स एंड वाई एक्सिस. ठीक है. तो ये तुम्हारी कोऑर्डिनेट एक्सिस है. कोऑर्डिनेट एक्सिस ए एक्स ई एस ये प्लूरल है. अगर एक ही एक्सिस है तो ए एक्स आई एस होता है. दो एक्सिस एक साथ है तो ए एक्स ई एस. तो ये दोनों लाइन -2, 3 से पास हो रही है. वेर इज -2 ओवर हियर एंड वेर इज 3 समवेयर ओवर हियर. मतलब इस पॉइंट से दोनों लाइन पास कर रही है और ये दोनों इक्वली इंक्लाइंड है कोऑर्डिनेट एक्सिस से. दो लाइंस. सो मतलब एक लाइन अगर ऐसे है ठीक है तो दूसरी लाइन ऐसे होगी. दीज आर बोथ द लाइंस. और अगर ये इक्वली इंक्लाइंड है कोऑर्डिनेट एक्सिस से इसका मतलब है ये पॉइंट तो -2, 3 है और ये इक्वली इंक्लाइंड है कोऑर्डिनेट एक्सिस से. मतलब ये दोनों लाइन एक्स एक्सिस पे भी सेम एंगल बनाती है और वाई एक्सिस पे भी सेम एंगल बनाती है. इक्वली इंक्लाइंड टू कोऑर्डिनेट एक्सिस. करेक्ट. मतलब ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा. ये अगर अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा. यू सी हाउ द लाइंस आर. दे आर इक्वली इंक्लाइंड. मतलब जो उनका एंगल है दैट इज सेम विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस. कौन सी? हाँ. हाँ.
Oh, I found a very interesting relationship. I will just name a triangle and you will tell me if you can locate it. Can you see triangle AOB? हाँ? Yes, sir. अच्छा, इसमें एक चीज देखो, नोट करो. I'll just name my alpha over here. This is alpha, okay? Can you tell me what is angle AOB? 90. Angle 90 AOB degrees, 90. sir. Why? Because the coordinate axis intersect each other at 90 degree. X and Y axis के बीच में 90 degree होता है. So angle A plus angle O plus angle B कितना होगा in triangle AOB? एंगल ए कितना है 180 degrees. अल्फा, एंगल ओ कितना है, एंगल बी कितना है थीटा. सॉरी, no, just for your understanding, but if you draw it will be very good. Without drawing you will not have this idea. That's why I'm drawing and showing you so that you can also try something like this. Anyways, so this is 180. So alpha plus theta is equal to 180 minus 90, and therefore alpha is equal to, sorry, alpha plus theta is equal to 90. अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू 90 का मतलब क्या है? अल्फा प्लस थीटा अगर 90 है, देखो ये अल्फा है यहां पे. आ, अच्छा, कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस? थीटा प्लस थीटा, 2 theta. You believe in this? This is 2 theta. Can you tell me what is this? 2 alpha, exterior angle. Alpha plus theta 90 है ना? कैसे प्रूव करेंगे इक्वली इंक्लाइंड? एक चीज है, शायद मुझे लगता है कि मेरी गलती है ये समझने में. आई फील दैट दे आर इक्वली इंक्लाइन टू बोथ द एक्सेस. इसका मतलब है अल्फा और थीटा अलग अलग नहीं है, एक ही है. आई वॉन्ट यू टू जस्ट चेक इन योर टेक्स्ट बुक्स. 15 तुम्हारे में नहीं है, उसमें है क्या? फाइंड द इक्वेशन. It's a 17 question. Okay. You they have the diagram? Is it same like this? Yes, sir. Okay. Just tell me one. I have one confusion. Are the two lines perpendicular? In in your in your figure, are the two lines perpendicular? Sir, angle ABO is given 45 degrees. Which one? Angle ABO. ABO is That is 45. That means the two lines are perpendicular. ABO is 45 degree. How they have taken that out? Sir, M is equal to tan 45 is equal to 1. 1 second, but how they got 45? So it's written as is clear from the figure. There are two lines AB and CD Huh? equally inclined to the coordinate axis. Okay. For line Oh, AB, yes. So these two angles are equal. Alpha and theta both are equal to 45. I'll tell you how. I'll again draw this. Actually, I had this misunderstanding of thinking that these two lines are equally inclined to the same coordinate axis. No, they are equally inclined to both the axes together. I'll again draw this.
So see, the two lines pass through the point. No. This is one line. Okay. Now this line, let me just talk about this line first and then I'll talk about the other line. So this line is equally inclined to both the axes. That means this angle and this angle is equal. Okay. Now this is how much? We know it already. So let these two angles be x. So if we find out, x comes out to be 45 degree from angle sum property. ठीक है. अच्छा, if x is 45 and this line is passing through -2, 3. This line is passing through -2, 3 and x is how much? 45. Then what will be tan of x? Which is 1. Okay. So we know the slope of this line, which is m, and we know that it is passing through -2, 3. So we can find the equation of the line by slope point form. But what about the other line? Now there is a problem that we don't know what about the other line. So the other line which we are going to draw, because see here they have asked the equation of the lines. Okay, so other line which we are going to draw is going to be like this. To the other side means? अच्छा here ऊपर. Okay, yes, doesn't sir. matter क्योंकि मेरे पास तो ये scale नहीं है proper. So maybe in your figure it is passing through here like this. Yeah, but my lines are parallel, na? So it doesn't make much difference. I'll tell you why. ठीक है, तो I'll consider this line. Now this line is also equally inclined to the coordinate axis. मतलब ये दोनों angle कितना होगा? 45. But note one thing. इसका स्लोप और ये वाली हमारी जो दूसरी लाइन है उसका स्लोप एक दूसरे का नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा. You know why? This line is this side. This line is this side. They both are perpendicular to each other. They both are perpendicular to each other. You know why? Because this is 45. This is also 45. This is also 45. So this will be 90. So both the lines will be perpendicular to each other. Right? So if this line has slope m1 is equal to 1, this line will have slope of m2 is equal to -1. And we can find the equation of this line also, because it is also passing through the point -2, 3. So now if we put slope point form, we would get both these equations of AB and CD. One line will be AB and one will be CD. Does not matter from where they are passing. But yeah, in this question we have understood that equally inclined का मतलब होता है एक ही लाइन x और y एक्सिस के साथ इक्वल एंगल्स बना रही है. ये दूसरी लाइन x और y एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बना रही है और वो इक्वल एंगल 45 डिग्री है. सो हमको स्लोप मिल गया और स्लोप पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन. तो I could not complete this chapter in the given time. Now there is no point of going ahead and doing other questions. There are still 6-7 questions remaining, right? So we can do that question in the next session. खत्म कर देंगे हम लोग इसको. बट अभी तक इफ यू आस्क मी, जो कॉन्सेप्ट है पूरे चैप्टर का, आई हैव टॉट यू एवरीथिंग. देयर इज नथिंग रिमेनिंग इन द चैप्टर जो हमको नहीं पता है, वो तो हमने सब कर लिया है. ओनली थिंग विच इज रिमेनिंग इज द सम सॉल्व्ड एग्जांपल्स. So this is one thing. I'll stop the recording.